What do you understand by gene editing? Although gene editing has, gene editing के बाद आपको क्वेश्चन मार्क देना था. ओके. Although gene editing has several positive effects, but many social and moral issues associated with this. Discuss. आगे कैरी करना. Although moral issues. डिस्कस में है सर. ठीक. ओके. तो दिस इज अ क्वेश्चन. लिसन हियर. व्हाट इज जीन एडिटिंग? क्या लिखना है आपको जीन एडिटिंग में? आप बोलोगे सर आपने बताया नहीं जीन एडिटिंग. ओके. हमने ये बात किया क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में? बात किया. ओके. ये क्वेश्चन लिख लो, जो नहीं लिखो फटाफट लिखो, जो अभी आए हो लिखो, तो फिर आगे बात करते. ओके. क्विकली, जल्दी, फटाफट. अगर हमने जो मिस किया ना, हमने बहुत कुछ पढ़ा दिया. क्या पढ़ा था यार? यस, आरडीएनए टेक्नोलॉजी कंप्लीट कर दिया था हमने सैटरडे. इसमें बहुत सारे मेथड्स थे, है ना. क्रिस्पर Cas9 ऑल्सो इंक्लूडिंग. 2016 से है न्यूज़ में क्रिस्पर Cas9. कंप्लीटेड. ठीक है, चलो देखो बात करते हैं. जेनेटिक इंजीनियरिंग सबको पता है. व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? मैं इसको रफ करने वाला हूँ. व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? ये संडे को क्या मतलब, जो मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास होती है, संडे को आपको अपने रूम पे क्या वैनिश क्लास लेते हो आप लोग, जो ईच एंड एवरीथिंग गेट वैनिस्ड. वाई? क्या होता है बताओ जीन एडिटिंग? ठीक है. हाँ, ओके. So here gene editing, the two types of gene editing. The first sorry, genetic engineering, not gene editing. अभी इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं. जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट. So genetic engineering, in the genetic engineering we are just discussing about the two types of the genetic engineering. The first one is the gene editing and second one is the gene therapy. Okay, you guys can easily distinguish between the gene editing and the gene therapy, right? What is the gene editing and what is the gene therapy?
ओके, दैट मीन्स जी नहीं नहीं कर सकते हो। ओके ठीक है, देखो मैं बताता हूँ कैसे। जीन 80 मीन्स व्हाट, वी आर एडिंग, we are adding the desired traits genes in any host genome. Clear? Clear? That means in the genome, in the host genome, there is no any abnormal genes are found, but we are actually adding the desired genes for the desired traits or characteristics developed in the host body. Okay, so we are just adding the word gene in the host genome. But in case of the gene therapy, what should be done? That means, firstly, we identify the abnormal gene in host genome. Okay, that means any gene which is responsible for any abnormal characteristics or abnormal traits. Okay, firstly we have to identify those genes. Okay, again then we cut that genes, or you can say abnormal genes. Okay, and just adding another genes, adding foreign genes. Okay, that means here in the gene therapy we are treating any genetic disorders. Okay, yeah, any disease or disorder which is related to the genes. Okay, like if we are talking about the hemophilia, so here is some genes are responsible for the what, responsible for the hemophilia. That means the factors of the hemophilia are associated with those genes which we have to be cutted that. Okay, उसको कट करके क्या करेंगे, रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड जस्ट एडिंग सम अनदर जीन. एडिंग भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बहुत कंडीशन आ रही, कुछ भी हो सकता है. So this is considered the what, gene therapy. Okay, and gene editing, normal, the normal condition, gene editing. Okay, fine, ठीक है. So question was what do you understand by the gene editing? So you have to put that what is the gene editing. Okay, बहुत सारे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे, लेकिन इसके बहुत सारे सोशल एंड मोरल इश्यूज हैं. ओके, लाइक सोशल एंड मोरल इश्यूज में हम जैसे लिखेंगे व्हाट, डिजाइनर बेबी. ओके, ये सोशल मोरल इश्यूज में डिजाइनर बेबी. और इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स में क्या हो सकते हैं, जीन एडिटिंग के पॉजिटिव इफेक्ट में क्या हो सकते हैं. ठीक है, हाँ बिल्कुल. और उसके अलावा हाँ, टुडे the organ transplantation is a very huge problem across the world, actually not even in India, across the world. The human organ transplantation is a very big, आप कह सकते हो consequence, और you can सकते हो कि complications. ठीक है, तो उसमें जीन एडिटिंग करके हम ऐसे ऑर्गन को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे कि जो कि हम उसको इन विट्रो भी डेवलप करके उसको ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. फाइन, ये सारे बहुत सारे इसके वो है. बाकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जितने भी सारे उसके एप्लीकेशंस हैं वो सारे जीन एडिटिंग से पॉसिबल हो सकते हैं. फाइन, क्योंकि अल्टीमेटली जीन एडिटिंग इज डन बाय द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द डीएनए. ओके, तो आर डीएनए टेक्नोलॉजी में जितने भी सारे एप्लीकेशंस थे, यू कैन पुट दोज एप्लीकेशंस ओवर हियर. फाइन, ओके. इसका लिमिट लिख लेना उस वर्ड्स का, आपको लिखना है 250 वर्ड्स में. ठीक है, एंड क्वेश्चन का मार्क्स होगा 15. क्लियर. अभी कल रिवाइज करके आना, कल आपने क्वेश्चन लिखना है यहाँ पर. आई विल गिव यू 10 मिनट्स. अभी स्टार्टिंग 10 दे रहा हूँ, धीरे धीरे इसको कम करूँगा. 7 मिनट्स में यू हैव टू गिव द आंसर. ठीक है, क्या किया था लास्ट क्लास में, क्रिस्पर केस 9 आया था सबको समझ में. जो लोग नहीं आए थे वो चाहते हैं कि यहाँ एक बार कर दें उसको ब्रीफ थोड़ा सा. ओके, देख लो, नहीं तो
अगर आपको क्लासेस मिलेंगी क्या, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी? कि ऑफलाइन वालों को शायद ना मिले। डोंट वरी, देखते हैं, कर लेंगे यार अपन डिस्कस कभी जैसे धोखे में सबको चकमा दे करके। हो गया कंप्लीट? चले, ओके। प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था? क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? क्लस्टर्ड okay is the case, nothing, it's a, yes, CRISPR associated 9 protein, okay. Actually this CRISPR Cas9 technology is not any new technology. This is just a new discovery, okay. And this technology is using by the bacteria, and it develops, this technology develops the immune system of the bacteria, okay. So क्या करता है ये सिस्टम, immune system, how it develops the immune system of the bacteria? Actually some viruses which have ability to infect a bacteria, okay, those viruses are considered as the bacteriophage viruses. क्या बोलते हैं उनको? Bacteriophages, okay. And these bacteriophages have the tendency to infect a bacteria. Whenever they infect a bacteria, okay, then just like in our body, when the pathogens is invaded over our body, okay, our immune system get activated. That means the WBCs get activated and producing the B lymphocyte and the T lymphocytes, okay. करेंगे बात, अभी ऊपर से आ रहा होगा बी टी लिम्फोसाइट्स, राइट, करेंगे उस पर बात करेंगे. दीज आर द सेल्स रिस्पॉन्सिबल टू किल द पैथोजेंस, एक्चुअली kill the pathogens directly, or when they are not able to kill directly the pathogens, they are producing the antibodies in our body. Antibodies, antigens, सब सुन रहे हो ना आजकल, खूब न्यूज में कोरोना चल रहा है, राइट. So they are responsible for producing the antibodies in our body, okay. So they are creating the immune system of human body, unlike just the WBCs. Here in the bacteria there is some cluster, this CRISPR is get activated. And what is this CRISPR? What is the palindromic repeats? When we are talking about the DNA sequence, जैसे हमने यहाँ पे लिया 2 सीक्वेंस लिया DNA का, सॉरी 2 स्ट्रैंड्स लिया, ओके. एंड वी नो दैट कि यहाँ पे कनेक्शन है किसका? ये क्या है इधर जो लगे हुए इधर? नाइट्रोजिनस बेसेस, ओके. तो सपोज ATCGA, या क्या इधर TAGCA, ओके. तो दिस इज द रिपीट, और इसी का जस्ट अपोजिट दूसरे स्टैंड्स में देखने को मिलेगा AGCTA, ओके. और इसका जस्ट इधर आप कर सकते हो, फाइन. दैट मीन्स they are palindromic in nature. These are the palindromes. Palindromes means what? Yes, they are look like same as the backward and the forward direction, okay. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे हमने बताया भी था एग्जांपल. मैडम, वर्ड मैडम फ्रॉम दिस साइड MADAM, फ्रॉम दिस साइड MADAM, है ना, एक जैसे. सम सेंटेंसेज और ये जैसे नर्सेज रन
NURSESRUN, run, NURSESRUN. So like this here, ATCGA, just its opposite AGCTA. Like, okay, they are repeating the word. These are the palindromic. When these bacteriophage is infected, the bacteria, okay, these palindromic repeats get activated, and they producing what? They producing a guide RNA. They producing a guide RNA, and this guide RNA is associated, or you can say get bind with the Cas9 protein. Cas9 protein in the bacterial cell. Normally the Cas9 protein is present in the bacterial cell in inactive form, but when the guide RNA is reached to the Cas9 protein, okay, it carries some coding messages to this Cas9 protein and conveying messages to get activated, okay, and this Cas9 protein is get activated. Fine, ठीक है, and this is acts as a what? Yes, एक सीजर की तरह काम करेगा Cas9 प्रोटीन. एंड व्हाट शुड बी डन दिस बाय दिस Cas9 प्रोटीन? ये पहुंचेगा कहाँ पे? सपोज करो कि यहाँ पे ऐसे ये रिपीट्स बार बार आ रहे थे इन द बैक्टीरियल DNA. Okay, when the virus get attached to this, that means the viral DNA is combined with this bacterial DNA. Okay, then this palindromic repeats get disturbed. ठीक, this Cas9 protein is reached at that site, identify that bacterial DNA and just cut it from over here. यहाँ से कट कर देगा इसको. फाइन, और कट करेगा तो तुरंत कट करके उसको क्या करेगा? बाहर निकाल देगा, और जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंड दिस बैक्टीरियल DNA अगेन गेट द रेप्लिकेटेड और डुप्लीकेशन. ओके, so that means we can use this CRISPR-Cas9 technology for the recombinant of DNA या recombination of DNA. क्यों? क्योंकि we know that what is the recombinant DNA or what is the recombination of the DNA? The introduction of the new DNA in a host cell is considered as the recombination of the DNA. Okay, and the technology which are used to carry out this recombination is considered as the rDNA technology or recombinant DNA technology. Okay, that means कि अगर हमें किसी फॉरेन जीन्स को किसी होस्ट जीनोम में ऐड करना है तो फर्स्टली वी शुड हैव अ सीजर. ऑब्वियस सी बात है, जैसे अभी हम आपको बोलें कि हमारा ये पहनने वाला जो ऊपर का जैकेट है, इसमें आपको दूसरा कलर का ला करके कुछ ऐड करना है आपने, तो आपके पास सीजर होगा, इसको कट करके निकालोगे तभी दूसरा ऐड करोगे, राइट? तो लाइक दिस. तो दिस Cas9 इज कंसिडर्ड एज द वन जेनेटिक सीजर. ओके, तो सीजर है तो कट करके उसको क्या करेगा? वायरस के जो भी जीन्स हैं उनको आइडेंटिफाई कट करके निकाल देगा. कहाँ से? बैक्टीरियल प्लाज्मिड से या बैक्टीरियल DNA से. क्लियर? ठीक. कुछ लिखा था आप लोगों ने rDNA में, या केवल डायग्राम पे हम लोग बात करके आगे बढ़ गए थे? और कुछ नहीं था? CRISPR-Cas9 में कुछ नहीं लिखा था? ओके, ठीक है, लिख लो थोड़ा सा. ठीक है, लिखा इट इज़ अ, ऐसे लिखना CRISPR-Cas9 हेडिंग करके लिखो. इट इज़ अ शॉर्ट फॉर, फुल फॉर्म लिख लेना, शॉर्ट फॉर क्लस्टर्ड रेगुलरली interspace short palindromic repeats and CRISPR associated 9 protein. Okay, CRISPR are specialized stretches of DNA
specialized stretches of DNA. Full stop. An enzyme is an enzyme that that acts that acts like a pair of like a pair of molecular scissors. Pair of molecular scissors. Molecular scissors capable of cutting capable of cutting strands of DNA. Strands of DNA. Next point. CRISPR technology. CRISPR technology is adapted by bacterias adapted by bacterias and and archaea. ARCHEAE. What are the archaeas? मिलेंगे कहीं पे आर्कियंस ऐसा करके आपको कभी मिल सकता है ना. Actually, these archaeas are those microorganisms which have the credit to firstly observed in the on the earth actually. Okay, in the protista world. अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले ये आपके बनने वाले क्या हैं? माइक्रोब्स हैं. दिस आर्कियंस. इसमें बहुत सारे थर्मोफाइल्स आते हैं. सबसे पहले यही बने थे, थर्मोफाइल्स. What are the thermophiles? Thermophiles are those archaeas. Yes, they can survive on high temperature. High temperature survival capability इनके अंदर. ओके. विंडो अर्थ बनी थी तो अर्थ कैसी थी? बहुत ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर. फाइन. ओके. क्या लिखा है इसमें आपने? लाइन मुझे रिपीट कर देना. एंड आर्कीज to develop defense system or you can say immune system. Defense or immune system or mechanism of organism. Defense or immune system of microorganism. वही बैक्टीरिया ध्यान रखें. नेक्स्ट पॉइंट लिखना. these organisms use CRISPR derived RNA ब्रैकेट में गाइड RNA लिख लेना. CRISPR derived RNA in bracket guide RNA and various case protein CAS various case protein ब्रैकेट case 9 है ना, in bracket case 9 protein to foil attacks by viruses and to foil attacks by viruses and other foreign bodies
full stop. They do they do so they do so primarily they do so primarily by chopping up chopping up and and destroying the DNA of a foreign invader and destroying the DNA of a foreign invader. Invader. Next line. When these components are transferred into other it allows for the manipulation it allows for the manipulation of genes manipulation of genes. Okay. अब ब्रैकेट में जीन्स क्या मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स मीन्स व्हाट दिस इज द जीन एडिटिंग. ओके ब्रैकेट लिख लेना कि जीन एडिटिंग मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स दैट मीन्स द जीन एडिटिंग. ओके CRISPR Cas9 is faster, cheaper, more accurate, and more efficient than other existing genome editing method. एडिटिंग. ठीक है क्लास, चीज़ें क्लियर हैं. तो दिस इज द CRISPR Cas9. ओके जो लोग सैटरडे आए थे उन्होंने मतलब कि वो डायग्राम बनाया होगा ना. ठीक है देख लेना आपको. और आप लोगों को जेरोक्स जहाँ तक है मेरी हैंड रिटन वाली ही मिलेगी. ठीक तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पुरानी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐड करना है तो वो मैं ऐड यहाँ करा दूंगा. आप उसको अपना उसमें टैली करवा लेना, कोई इशू नहीं उसमें. ठीक है मेरी हैंड रिटन है तो इट मे बी वेरी मच पॉसिबल कि आपको थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ जाए, राइटिंग से रिलेटेड. ठीक है तो परेशान मत होना, तो बताना पड़ता है क्या करें. तो परेशान मत होना, उसमें जब बहुत ध्यान दे के पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर हम तो हैं ही. ठीक है चलो. क्योंकि यहाँ लिखता हूँ तो मैं थोड़ा सा संभल के लिखता हूँ, लेकिन जब अपने नोट्स में लिखता हूँ तो अपनी औकात के हिसाब से लिखता हूँ. राइट तो थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रहती है तो इसलिए हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए. चलो अभी नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेम सेल एंड स्टेम सेल टेक्नोलॉजी. स्टेम सेल एंड द स्टेम सेल टेक्नोलॉजी. और बात करते हैं क्या होते हैं स्टेम सेल एंड स्टेम सेल टेक्नोलॉजी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेम सेल? व्हाट इज द स्टेम? स्टेम मीन्स ब्रांचेस? नहीं स्टेम इज नथिंग. स्टेम इज जस्ट अ पिलर. when we talk about the pillar of plant or trees, so we found that this stem is considered as a pillar. स्टेम से ही क्या होते हैं, रूट्स भी निकलते हैं, स्टेम से ही आगे ब्रांचेस निकलती हैं. ओके फिर लीव्स एंड ऑल, फिर फ्रूट्स एंड ओके. दैट मीन्स इफ यू ऑब्जर्व दैट देन यू फाइंड दैट दिस स्टेम when goes inside the soil, okay, so it is converted into the roots.
क्लियर? क्यों? क्योंकि जब स्टार्टिंग में किसी भी सीड्स से कोई प्लांट बनता है तो सबसे पहले उसमें बड्स निकलती हैं। ओके, बड्स निकलने के बाद जैसे सपोज करो सीड्स है, जैसी सीड्स ग्रो होगा हल्का सा इसमें क्या होंगे, हल्का सा एक बड्स निकलेगा, फिर थोड़े टाइम्स के बाद क्या होगा, फिर ऊपर जा करके सबसे पहले कुछ भी होगा तो यहाँ पे दो ऐसे पत्तियाँ दिखेंगी आपको, फिर आगे फर्दर क्या, वही आगे कन्वर्ट होते होते एंड व्हेन इट creating any complete tree, then you find that this is the stem. That means this stem is responsible for what? This stem is under the आप soil कह सकते हो, converted into the roots and ऊपर जाएगा, जितना ऊपर चलता जाएगा तो लास्ट में जो टॉप ऑफ द जो ट्री का पोर्शन है, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड व्हाट, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द व्हाट, स्टेम. दैट मीन्स स्टेम हैज टेंडेंसी टू कन्वर्ट एनी टाइप ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ट्री. ठीक है, क्लियर? लाइक दिस, इन द केस ऑफ स्टेम सेल, द स्टेम सेल्स आर कंसिडर्ड एज द सेल्स who have या which have the tendency to convert the another types of the cell. Okay, that means stem cells ऐसी cells होती हैं which have the capability, जिनके पास capability होती है कि किसी another cells में क्या हो जाएं, convert हो सकें. Okay, so those cells are considered as the stem cells. If we are talking about the stem cells, then here is the very best example. Example is the embryonic cells. Embryonic cells. Okay, देखो कैसे एम्ब्रियोनिक सेल्स. इन केस ऑफ द एम्ब्रियोनिक सेल्स, व्हेन द sperm and the ovum get fused, fertilized, they are creating the zygote. Okay, clear? And zygote is further multiplied and forming the embryonic cells, yeah, embryo. Clear? And this embryo is further considered the three stages MBG, क्या क्या होता है, मॉस्टुला, बेस्टो, गैस्ट्रुला, MBG स्टेज. ओके, 3 स्टेज, चलो उस पर बात नहीं करेंगे. एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू द फुल बॉडी. दैट मीन्स द बेबी इज born. These embryonic cells have tendency to convert in all types of the cells. That means these are responsible for the formation of bones, these are responsible for formation of the organs, these are responsible for the formation of skin, hair, nails, tooth, whatever जो कह लो आप, cardiac muscles, lungs, kidneys, brain, each and everything, bones, cartilage, जो भी आप कह सकते हो, blood even. Okay, so these embryonic cells are what, are capable to converting the another types of cells. That means they can convert into the complete full body. So this is the very best example of the stem cells. Okay, so and this is the considered the stem cells. Now the stem cell technology, that means by using the technology we are just cultured a stem cell in vitro level. In vitro, that means inside the laboratory. Okay, inside the laboratory. And what is the applications of the stem cell technology? That means अगर हम इस पे बात करें कि these are the stem cell and how the stem cell is applicable for us. तो IVF, हाँ IVF होता है, IVF की बात अभी करेंगे थोड़ा सा, लेकिन उसको स्टेम सेल में हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेम सेल नहीं, हम IVF के लिए कंप्लीट पूरा यहाँ से स्पर्म और ओवम दोनों लेते हैं. ओके, चलेंगे, करेंगे उस पर बात अभी. सो व्हाट इज द, क्या इसका एप्लीकेशंस क्या हो सकता है? सपोज समवन इज सफरिंग फ्रॉम द किडनी कैंसर. ओके, और आफ्टर सम टाइम द किडनी गेट फेल्ड. ठीक, द किडनी फेलियर इज अगर ही नीड अ किडनी. अभी किडनी नहीं है उसके पास, फाइन. एंड कोई भी ऐसा जो नियरेस्ट उसका जो क्या है, जेनेटिक नेबर है या नियरेस्ट जेनेटिक रिलेटिव्स है. नियरेस्ट जेनेटिक रिलेटिव्स मतलब ब्रदर सिस्टर्स एंड मदर सन
father son, these are the what nearest genetic relatives. Okay. Okay, सपोज दैट उसका जो नियरेस्ट जेनेटिक रिलेटिव है वो कोई 5 से 6 साल का छोटा सा बेबी है और कोई है नहीं, तो इन दैट कंडीशन अब क्या करेंगे? जस्ट आइडेंटिफाई द स्टेम सेल. ओके, just identify the stem cell who have tendency to convert the cell type of the kidney. Okay, that means ऐसी सेल्स को हमको आइडेंटिफाई करना है और ऐसी सेल्स को हम पिक करेंगे जिसके अंदर वो कैपेबिलिटी होगी वो किडनी के सेल्स में क्या हो जाए, कन्वर्जन की टेंडेंसी रखती हो. क्लियर? ओके फाइन. देन हम उस सैंपल को लेंगे और उसको जस्ट प्लेस इनटू द लैबोरेटरी इन अ कल्चर मीडिया and providing the culture of that cell. So after some time that cell is converted into the complete organ. Morning. Incomplete organ. Okay. So इस तरीके से मेडिकल सेक्टर में the stem cell technology is very useful. Okay. Actually stem cell technology, okay, stem cell technology is a boom in medical sectors. ओके, अगर स्टेम सेल टेक्नोलॉजी कंप्लीट डेवलप हो जाएगी तो डिपेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और जो क्या कह सकते हैं आप, किसी भी ट्रांसप्लांट, वो उसको क्या बोलते हैं, अंगदान को क्या बोलते हैं यार, कोई जब ऑर्गन क्या कर देते हैं, डोनेट, हाँ ऑर्गन डोनेशन. ओके, तो ये ऑर्गन डोनेशन के नाम पे जो भी इलीगल चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ें नहीं होंगी. फाइन. दैट मीन्स कि अगर किसी किडनी निकाल दिया तो डॉक्टर लोग पढ़ा दिया पट्टी, अरे इनके वो किसी की ज़रूरत थी इसलिए हमने इनको चीर के निकाल लिया इनकी एक किडनी, जबकि पता चला कि वो बेच दिया आगे 20-25 लाख रुपए में, है ना, कमा लिए प्रॉफिट. राइट. तो बहुत सारी चीज़ें इससे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको टैकल किया जा सकेगा. फाइन. तो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ द स्टेम सेल्स आर many of types actually. Okay, that means some cells are here which have tendency to convert the all other types of the cells. Okay, like this embryonic cells. The embryonic cells have tendency to convert the all other types of the cells. That means convert into the lungs, convert into the heart, in kidney, in bones, मैंने जैसे बताया, etc. And these type of stem cells who can convert into the all other types of the cells, they are considered as the totipotent stem cells. Totipotent stem cell. लिखना नहीं, भी सब लिखा देंगे, परेशान ना हो. ओके, हटो यार. ओके, so totipotent stem cells. Some stem cells have tendency to many other types of the stem cells. They are considered as the pluripotent stem cells. Some have tendency to convert some other types of cells. Okay, so they are considered as a oligopotent stem cells. And some stem cells have tendency to conversion of a specific type of cells. मतलब एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स में ही उनका कन्वर्जन हो सकता है. ओके, like the liver cells. The liver cells has tendency to convert into the liver cells. ठीक है, तो दे आर कंसिडर एज द मोनोपोटेंट स्टेम सेल्स और यूनिपोटेंट स्टेम सेल. ठीक है, थोड़ा सा इसमें लिखने से चलेंगे. लिखिए स्टेम सेल, स्टेम सेल्स. the cells that can be converted, into other cell type, actually they have renewable tendency, that means tendency to convert in other type of cell. Okay,
by the culture of stem cell, by the in vitro लिख लेना, by the in vitro culture of stem cells, we can use this technology, for therapeutic purposes, for therapeutic purposes, for therapeutic purposes. Sorry. Okay. The types of stem cells. Types of stem cells. फर्स्ट लिखना है इसमें टोटीपोटेंट systems, totipotent stem cell. The totipotent stem cell considered totipotent stem cell considered cells that can be converted in that can be converted into all other types of cell, all other types of cell. Example is embryonic cell, okay. Second लिखना है इसमें, the second one is the pluripotent stem cell. Pluripotent stem cell, okay. Cells लिखना, the cells that converted into many other cell types. Example, umbilical cord cell. Umbilical ई नहीं रहेगा यहाँ पे यार. umbilical cord cell. What is umbilical cord? किसको नहीं पता umbilical cord? बहुत मैक्सिमम. ओके, लिसन. जब बेबी का बर्थ होता है ना, तो देयर इज अ ट्यूब, एक्चुअली मस्कुलर ट्यूब, विच इज अराइजेस फ्रॉम द मदर्स वोम एंड अटैच टू द बेबी. ये जो नाभि में जो होता है ना, ओके, दिस दैट ट्यूब इज कंसिडर्ड एज द वर्ड अम्बिलिकल कॉर्ड. उसी को बोलते हैं क्या? अम्बिलिकल कॉर्ड. ओके, चलो नेक्स्ट लिखना, मल्टीपोटेंट. थर्ड वन इज द multipotent or oligopotent stem cells. Oligopotent stem cells. Okay. The cells that can be converted into
into few other type of cell, few other type of cells. Okay, example लिखना. Bone marrow cells, bone marrow cells are used, can be used लिखना. Bone marrow cells can be used to convert into to convert into to convert into various type of blood cells, convert into various types of blood cells, and it cannot be used, and it cannot be used to convert into organs. Okay, cannot be used to convert into organs. That means these considered as the multipotent or oligopotent stem cells. What is bone marrow? सबको पता है bone marrow? Anyone जिसको ना पता हो bone marrow? Okay, this is the, क्या होता है bone marrow? What is bone marrow? पता तो सबको है, हमें भी कोई पता कराए फिर इसी बात पे. यही समस्या है. देखो यूपीएससी इसीलिए बोलता है आप लोगों को कि जो हम कह रहे हैं वो करो. अगर मैं आपको पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो आप ये मत बोलना आपकी मतलब अपने पापा का नाम लेके मैं उनका बेटा हूँ. आप अपना नाम बताओ. जस्ट व्हाट इज़ बोन मैरो. सिंपल क्वेश्चन. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बोन मैरो या व्हाट इज़ द यूज ऑफ बोन मैरो. नहीं, व्हाट इज़ बोन मैरो. अब बताओ. हम्म, बताइए. वही बताना था क्या जो वो लोग बता रहे थे, ऐसा कुछ. जॉइंट्स ऑफ द बोन्स करेक्ट है. हम्म, और कोई जो लगता हो कि बहुत 30 मार्क हाँ टाइप का आंसर दे सकते हैं. तुर्रम खां लाइक समथिंग. चतुर है कोई यहाँ पे जो बता सके. नहीं, सब रेंचो, सारे के सारे पुनसुख वांगड़ू. हाँ, सिंपल लैंग्वेज में बताना था ना. तो ना एक्चुअली लिसन ये दिस इज एक्चुअली जब बोन मैरो की बात करते हैं तो वी कंसीडर दैट दिस इज द रेड बोन मैरो. ठीक है, मोस्टली आपको इस चीज में रेड बोन मैरो. व्हाट इज द मैरो. ये समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आएगा. मैरो इज कंसीडर्ड एज द मिडिल portion of the bone. Middle portion of the, that means specific type of cells are present at the middle of the bone is considered as the bone marrow. अब जितने सब कुछ बताया था ना सब उसमें ऐड कर दो. They are responsible for producing the RBCs, they are responsible for WBCs, platelets. Yes, actually the bone marrows are responsible for the erythropoiesis. You can say in simple word the hemopoiesis. Hemo means blood. Okay, poiesis मतलब formation. Okay, so blood formation, this is responsible for the blood formation. That means the bone marrow have tendency to convert it into the RBC, WBC, platelets. Okay, that means it has tendency
to convert the several type of blood cells. Okay, और blood cells के 3 types होते हैं, we know that, RBC, WBC and platelets. But the bone marrow के पास वो tendency नहीं है, it converted into the organ. That means कि we cannot convert the bone marrow cells into the lungs or into the liver. Okay, we cannot change it, but we can convert it into the RBC, WBC and platelets. ठीक है, बोन मैरो के सेल्स को कंजर्व कर लेंगे, उसी का क्या करेंगे, कल्चर कराएंगे और आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कर देंगे. जो ब्लड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ड्यू टू द क्या बड़ा एक अच्छा सा वर्ड था, मैं मिस कर रहा हूँ. चलो देखें, नेक्स्ट लिखो. द नेक्स्ट वन इज द unipotent or monopotent stem cell. The fourth one is the unipotent or monopotent stem cell. Okay, the cells that can be converted into any special class cells. Any special class cells. Here is the example is muscular stem cells. Muscular stem cells. क्या होते हैं muscular stem cells? That means they are converted into the muscles actually. Okay, and only converted into the muscles. अब इसमें muscles के अलावा और इसके अंदर कोई टेंडेंसी नहीं पाई जाएगी कन्वर्जन की. ओके, ऐसा नीचे लेक्स्ट मतलब कि लाइन चेंज करना. दीज आर द एक्चुअली टाइप्स, द 4 टाइप्स ऑफ द स्टेम सेल्स आर फाउंड. ओके, नीचे लिखना द एप्लीकेशंस ऑफ द स्टेम सेल्स. एप्लीकेशंस ऑफ द स्टेम सेल टेक्नोलॉजी. The stem cell technology is used in stem cell therapy. Used in stem cell therapy. Okay. That means stem cell therapy is used. Stem cell therapy is used to treat or prevent a disease or condition. Okay, now adult bone marrow cells guided to become some heart like cells, some heart like heart 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 like. Okay, to repair heart like cells to repair heart tissue in people. नेक्स्ट पॉइंट लिखना umbilical cord
umbilical cord is a pluripotent stem cell. Pluripotent stem cell having the more importance as medical point of view. Medical point of view. Umbilical cord may be preserved for 21 years at very low temperature. Okay, that means कि 21 years तक इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं. And we know that the umbilical cord is considered as the pluripotent. Pluripotent, that means the conversion of many other types of the cell. Okay. तो क्या इसका यूज हो सकता है? हाँ, ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर लाइक डिजीजेस. लिखो इसमें, ऐसे पॉइंट करके लिखो. स्टेम सेल्स कैन बी used to treat diseases like cancer, cirrhosis, of liver and kidney, क्या लिखा, लाइन क्या था? cirrhosis of liver and kidney. नेक्स्ट पॉइंट लिखना. some human organs can be created by stem cell technology by using stem cell technology to reduces the complexity of organ transplantation. Okay. ठीक है. इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं? व्हाट काइंड ऑफ द नेगेटिव, यू कैन से द डीमेरिट्स ऑफ द स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, क्या हो सकते हैं इसके नेगेटिव? बहुत ही बड़ा नाम आता है, मतलब वर्ड आता है, आप कह लो कि न्यूज़ में भी बहुत सुनते होंगे, ऑर्गन ट्रैफिकिंग. क्या होता है ऑर्गन ट्रैफिकिंग? क्या होता है? ओके, दैट मीन्स इलीगल ट्रेड ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स. ओके,
ठीक है. That means if the stem cell technology, you can say the process, a method of the stem cell technology is goes in the hand of some illegal, आप कह सकते हो कि पर्सनल या ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या कर सकेंगे वो? इलीगल सप्लाई कर पाएंगे, राइट. सबसे बड़ा इसका मोरल इशू है, जो आप कह सकते हो सोशल इश्यूज भी कह लो, मोरल भी कह लो, कि दिस इज एक्चुअली गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर द, आप कह सकते हो स्मगलर, फॉर द स्मगलिंग ऑफ द इलीगल स्मगलिंग ऑफ द ऑर्गन. ओके, इसका सबसे बड़ा इशू है. बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया actually the providing the time to time the guidelines regarding the stem cell technology. ठीक है, दैट मीन्स कि stem cell technology के लिए guidelines provide करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, and these guidelines are actually providing the provisions regarding the stem cell technology. That means कि which body is considered, which institution is considered as the regulatory authority regarding this stem cell technology. That means ऐसा नहीं कि कोई भी कर ले, या किसी भी इंस्टीट्यूट में पता चला कि सिस्टम सेल टेक्नोलॉजी परफॉर्म हो रहा है. ओके, कोई पर्टिकुलर कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स होंगे जिन जो क्या करेंगे, जिनको लाइसेंस मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फॉर द रिसर्च इन द स्टेम सेल टेक्नोलॉजी. फाइन, तो गाइडलाइंस टाइम टू टाइम देता रहता है. तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गाइडलाइंस थी 2017 में रिफॉर्म हुई है. ठीक है, तो उसके बाद से अभी तक तो नहीं हुआ है, 2021 तक हो सकता है नेक्स्ट आगे रिफॉर्म हो जाए. लिख लो थोड़ा सा इसके बारे में, गाइडलाइंस के बारे में. इसमें लिखना नेशनल गाइडलाइंस फॉर स्टेम सेल रिसर्च 2017. नेशनल गाइडलाइंस फॉर स्टेम सेल रिसर्च 2017. क्लियर. हम इसमें लिखना एथिकल कंसिडरेशन, एथिकल कंसिडरेशन. देखते हैं इसमें मैंडेटरी टू गेट मैंडेटरी, ठीक से बोलो. कंसिडरेशन था ना, ठीक है. हाँ, इसमें लिख लेना मैंडेटरी टू गेट इन्फॉर्म्ड consent from the voluntary donor okay, comma, prior to procurement of stem cell, prior to procurement of stem cell, it will include videos consent. It will include videos consent as per CDSO as per CDSO guidelines. That means यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग द गाइडलाइंस दैट कि CDSO क्या, दिस इज द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, दैट
why the CDSO is dealing with this? Because we know that this stem cell technology is related to the therapeutic purpose. ठीक है, थेरापेटिक पर्पज इसका प्राइमरी पर्पज है, इसका स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का. ओके, एंड दिस CDSO is dealing with the control of the drugs and methods which are using for the treatment of the diseases. ओके, ठीक है. तो ये क्या करेगा कि एक क्या इसमें लिखे हो वीडियो, क्या, हाँ बिल्कुल, वीडियो कंसेंट के साथ में, मतलब जैसे कोई डोनर है वो बोलता है यस आई एम रेडी दैट आई विल गिव यू माय स्टेम सेल्स फॉर द प्रिजर्वेशन. ठीक, तो एक तो उसका ऑन पेपर पूरा साइन होगा, पूरा कंप्लीट, उसको बताया जाएगा कि आपका स्टेम सेल प्रिजर्व करने के लिए लिया जा रहा है. आर यू ओके विद दिस? तो हाँ ओके है. उसके लिए टू प्रोवाइडिंग द प्रूफ टू द गवर्नमेंट, उसके लिए क्या करेंगे, जो भी गाइडलाइंस है CDSO का, उसके अकॉर्डिंग उसका वीडियो भी छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया जाएगा जिसमें बोला गया कि हाँ मेरा नाम ये है और मैं अपने स्टेम सेल डोनेट करके उसके प्रिजर्वेशन के लिए आई एम ओके विद दिस. ठीक है, तो इसमें इतना मतलब सिंपल प्रोसेस नहीं है कि ठीक है कोई भी तैयार हो जाता है ऐसा करके, राइट. तो गवर्नमेंट अपना गाइडलाइंस देती रहती है. गवर्निंग बॉडी क्या है? दैट मीन्स CDSCO जो है एक तरीके की गवर्नमेंट बॉडी या रेगुलेटरी बॉडी हो गई. किस चीज़ के लिए? स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के लिए. नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें. सम साइंटिफिक, ये एथिकल कंसिडरेशन था. एथिकल दैट मीन्स कि जो बंदा दे रहा है, जो डोनेट कर रहा है, उसको कंसीडर करना. ठीक है, एथिकली और मोरली कंसीडर करना कि ठीक है भाई उसकी सेल है, उसकी स्टेम सेल है, उसको भी तो एटलीस्ट जानकारी होनी चाहिए. फाइन. तो नेक्स्ट लिखना है इसमें साइंटिफिक कंसिडरेशन. साइंटिफिक कंसिडरेशन. ओके, इसमें लिखना पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट, it provides details on requirements. It provides details on requirements for manufacturing of stem cells and their derivatives. It provides details on the requirements for manufacturing of stem cells and their derivatives. Okay, that means first one is that कि क्या requirement है, क्यों स्टेम सेल को कल्चर करना है, या स्टेम सेल से जो ऑर्गन बनाना है क्यों बनाना है. फाइन. नेक्स्ट पॉइंट में लिखना इट इज मैंडेटरी that the stem cells or their products are processed in CDSCO licensed GMP compliant facility. What is GMP? कभी कोई प्रोडक्ट लो, स्पेशली जो एडिबल होते हैं, ठीक है, अब उसमें देखना दे आर एक्चुअली GMP सर्टिफाइड. एंड व्हाट इज द GMP? GMP स्टैंड फॉर द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और प्रोसेसेस. ओके, ठीक है, दैट मीन्स GMP ये बताता है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और प्रैक्टिसेस हैं दे आर गुड इन नेचर. ओके, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द अथॉरिटिव इंस्टीट्यूशन और बॉडी. ठीक, बॉडी कोई भी हो सकता है. इन केस ऑफ द स्टेम सेल टेक्नोलॉजी CDSCO इज हियर फॉर द GMP सर्टिफिकेशन. ओके, अब सपोज करो जैसे कोई एडिबल थिंग्स होती है, राइट, तो उसका GMP कौन डिसाइड करता है?
ऐसा कुछ होता है क्या? फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, फसाई। या एफसीआई भी होता है कुछ क्या? यस, फूड कॉरपोरेशन ऑफ, राइट। तो ये भी क्या करते हैं, ये जीएमपी प्रोवाइड कराते हैं। अब कुछ ऐसा मैन्युफैक्चरिंग होता है जैसे अप्लायंसेस भी होता है, उसमें भी जीएमपी सर्टिफाइड होते हैं। तो वो जीएमपी सर्टिफाइड होने के बाद उनमें लिख उठता है ओके टेस्टेड, होता है ना, ओके टेस्टेड, ठीक है, ओके टेस्ट, सही है, कंप्लीट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट, द कॉमर्शियल यूज ऑफ स्टेम सेल्स एज एलिमेंट्स, द कॉमर्शियल use of stem cells as elements of therapy is prohibited, is prohibited। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो कि स्टेम सेल से बहुत सारी किडनीज बना लिए, बना के उसको रख लिए, और पता चला कि जैसे पैरासीटामॉल बेचा जा रहा है वैसी किडनी बेची जा रही है, जिसको मर्जी ले जाओ। उस लेवल पे नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, अवेलेबल है, कोई भी पहुंच गया, भाई ट्रांसप्लांट कराना था, किडनी अरेंज हो जाएगी, हाँ हाँ हो जाएगी। तो नो, इंडिया में, इन इंडिया देर इज सो मैनी मोरल एंड एथिकल वैल्यूज़ एक्चुअली, ओके, जिनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, क्वेश्चन मार्क्स लग जाते हैं, ठीक है। और कुछ लेवल पे वो सही भी होता है और कुछ लेवल पे गलत भी होता है। अब जैसे सपोज करो कि इन द स्टेम सेल टेक्नोलॉजी देयर इज सो मेनी मोरल वैल्यूज आर वर्किंग, ओके, एंड दिस इज द रीजन। अभी नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे कि ये इसका केवल क्लिनिकल ट्रायल्स अलाउ होता है, किसका, ह्यूमन स्टेम सेल का, क्लिनिकल ट्रायल्स ओनली, अभी तक कोई प्रोडक्शन किया नहीं गया है, ठीक है। एंड क्यों नहीं किया गया है, यही एथिकल वैल्यूज। वी नो दैट कि एम्ब्रियोनिक सेल इज अ वेरी गुड स्टेम सेल, यू कैन से वेरी क्या बोलते हैं उसको, एकदम सुप्रीम स्टेम सेल बात कर सकते हो, राइट। बट when we will suppose that कि when we are considering the embryonic cell for the production of the different kind of the organs or cells, or you can say the derivatives or products, so firstly we have to be क्या करना पड़ेगा, embryonic cell कलेक्ट करना पड़ेगा। एंड इन इंडिया the embryonic cell collection that means the death of the embryo। भाई मदर्स की बॉडी से अगर एम्ब्रियॉन्स निकाल लोगे, दिस इज कंसिडर एज अ व्हाट, अबॉर्शन, दिस इज कंसिडर एज अ अबॉर्शन। तो दिस इज अ वायलेशन ऑफ द मोरल वैल्यूज, ठीक है। और हमारे यहाँ, और अच्छा भी है इस लेवल पे, अच्छा भी है, क्योंकि क्यों ठीक है इस पर प्रोहिबिट करना, वाई दिस इज प्रोहिबिशन इज नेसेसरी, बिकॉज कि अगर ऐसा अलाउ कर दिया तो जितने जाकर के अबॉर्शन करवाते हैं फिर ये चोरी छुपे नहीं करवाएंगे, ये डायरेक्ट करवाएंगे। कहीं किसी को एम्ब्रियोनिक सेल की जरूरत थी तो हमने भैया प्रोपाव करके दे दिया, हमने कहा दे दो यार, है ना। तो बहुत ज़रूरी है उस पर एक मतलब आप कह सकते हो कि लगा के रखना, एक नच नट जो है टाइट करके रखना, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, ओके। रेस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन बहुत सारे मामलों में, अभी आप देखोगे ना, जितने भी टेक्नोलॉजीज पढ़ोगे, व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द रोबोटिक्स, तो इन इंडिया देयर इज़ द मोरल वैल्यूज़ विच इज़ प्लेइंग विद द रोबोटिक्स, ठीक है। और वो इसीलिए यही रीज़न है कि अभी तक रोबोटिक्स में हम उतने नहीं आ पाए हैं जितना अदर कंट्रीज़। हाँ, अदर कंट्रीज में देखो रोबोटिक्स रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, मतलब कोई मिलेगा ही नहीं आपको इंसान वहाँ पे, खाली खाना खाने वाले इंसान मिलेंगे वहाँ पे, कस्टमर। बाकी उसके अलावा ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट रेस्टोरेंट इंक्लूडिंग फ्रॉम मैनेजर टू वेटर, दे आर द एक्चुअली रोबोट्स, ठीक। तो अपना अपना वैल्यू लिखो। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखना, नेक्स्ट पॉइंट, नो स्टेम सेल, नो स्टेम सेल administration to human, no stem cell administration to humans is permissible, is permissible outside the purview of clinical trials, outside the purview of clinical trials, समझ रहे हो ना।
दैट मीन्स क्लिनिकल ट्रायल्स के अलावा और कोई उसको परमिशन नहीं मिला हुआ है कि उसको एडमिनिस्टर किया जाए. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, lays down, next point bring lays down criteria for, lays down, lays, lays down criteria for release of stem cells and their product, stem cells and their product. Example, example, mandatory to have proper labeling, mandatory to have proper labeling on stem cells and its product. Its product before release. Before release. CDSC certification is also needed. CDSU certification. रिलीज मतलब कहीं भी उसको अगर भेजना है तो उसमें प्रॉपर लेबलिंग होना चाहिए कि हाँ दिस इज द विच काइंड ऑफ स्टेम सेल एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ. ओके. CDSO सर्टिफिकेशन, दिस इज ऑल्सो मैंडेटरी. ठीक है. कुछ इसमें इंस्टीट्यूशंस दिए गए हैं. देयर इज सम इंस्टीट्यूशन लाइक नेशनल अपेक्स कमेटी, नेशनल अपेक्स कमेटी फॉर स्टेम सेल रिसर्च एंड थेरेपी, research and therapy. National Apex Committee for Stem Cell Research and Therapy. NSC SCRT. ठीक है. डेस्क पे लिखना फॉर मॉनिटरिंग, फॉर मॉनिटरिंग research activities at the national level, research activities at the national level, for monitoring research activities at the national level and lays guidelines for, lays guidelines for basic and clinical research, basic and clinical research. ओके. नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है इसमें इंस्टीट्यूशनल कमेटी, इंस्टीट्यूशनल कमेटी फॉर स्टेम सेल रिसर्च. ठीक है. इसमें सिंपल एक लाइन लिखना है, इट अप्रूव्स
and monitors SCR, that means stem cell research at the institutional level. At the institutional level. ओके, इसमें लास्ट पॉइंट लिख लेना, बहुत लिख लिया आज ना, कोई बात नहीं, ये लास्ट पॉइंट लिख लो, फिर आज कुछ नहीं लिखाएंगे। लास्ट पॉइंट लिखना इसमें, prohibits research in certain areas, prohibits research in certain areas such as reproductive cloning in humans, such as reproductive cloning, 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 cloning in humans, comma, use of genome modified human embryos and gametes, use of genome modified human embryos and gametes, comma, animal breeding where human stem cells have been introduced at any development stage, introduced at any development stage. ठीक है, क्या आपने लिखा नहीं पूरा? हाँ, वो मैं बताने ही जा रहा था। ठीक है, तो एक्चुअली दीज आर द, आप कह सकते हो कि institutional controlling over the stem cell technology according to the government of India. Okay, and these are the guidelines which they governs the stem cell technology or therapy in India. ठीक है, इसको लिखना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको पॉइंट आपके पास होने चाहिए मेंशन करने के लिए। फाइन, और ये चीज़ें मगअप करने वाली चीज़ें, हाँ आपने क्या बोला था? क्लोनिंग, ठीक है, करते हैं बात अभी इस पे, क्लोनिंग पे। ठीक है, ठीक, परेशान मत होना। चलो, नेक्स्ट इज हियर, हमें डिस्कस जो करना है, दिस इज द अबाउट द ARTs. ओके, व्हाट इज द ARTs? दिस इज द assisted reproductive technique. CS भी मिलता है, QUE भी मिलता है। ठीक है, अभी ऐसा मत बोलना कि सर आपने स्पेलिंग गलत की, राइटिंग खराब हो सकती है, स्पेलिंग कहीं कहीं अच्छी होती है, सही होती है। ओके, चलो, so this we will discuss about the ARTs. What is the ARTs and what is the reproductive and what is the assisted? Reproductive means what? That means the process of reproduction. Reproduction, that means the production of same क्या members, species, whatever you can. ठीक, these are considered the reproduction. In the assisted reproductive techniques, there is a condition when the ARTs are adopted, and the condition is that in case of the azoospermia, ध्यान से सुनना, in case of the azoospermia in human beings. Azoospermia means what? नहीं, नहीं पता,
yes, there is no formation of sperm in male. Okay, that means complete absence of sperm. In this case, the ARTs is used. Okay, and in this case the ART is required. In the normal reproductive system, इसमें होता क्या है, normal reproduction में from sperm, this is the ovum, sperm from male and the ovum from female. Okay, the sperm is floating through the fallopian tube and reach to the ovum, and fertilization is occurs between sperm and the ovum. Okay, and here is N and this is N, that means 23 is here and 23 is here. What 23? 23 means what? Yes, and they are conjugated with each other and forming the zygote, and this is the complete 46 having cell. Okay, this is considered the zygote. Okay, fine. Now the zygote is further get multiplied, and this zygote is creating the embryo. Fine, ठीक है, embryo, that means several gametes are created and they are formed the embryo. ठीक, now the embryo is converted into the fetus. Okay, fetus, and ultimately after a particular duration of time, okay, in case of the human being this is the 9 month and 9 days. okay, अगर आप उसमें बात करेंगे वीक्स में, तो हाउ मेनी वीक्स अप्रॉक्स. okay, so after that a baby, complete baby body is formed and the birth. ठीक है, fine. okay, so that means to birth a baby, the sperm in the male and the ovum is female. Both the sperm and ovum are responsible, are important or necessary. okay, ठीक है, but in case of azoospermia there is a complete absence of the sperm in the semen of the male. okay, अब उसके सीमेन में स्पर्म नहीं है, that means the sperm is not available here to fertilize the egg and processing the further completion of the process. ठीक है, in that case we are using, the person is go to this ARTs, or you can say the assisted reproductive technique. The assisted reproductive techniques, the firstly this is follow the intrauterine insemination. करेंगे इस पे बात अभी. okay, the first steps of the ARTs is the intrauterine insemination. that means there is insertion of the this zygotic form in the uterus of the female body. okay, in the uterus of the female body, this is considered the intrauterine insemination. ठीक है, चलो एजोस्पर्मिया आया समझ में, दैट मीन्स स्पर्म बनेगा ही नहीं बॉडी में. ठीक है, ओके. सम अदर आप कह सकते हो कि रीजंस आर आल्सो हियर. रीजन इज दैट there is a possibility of the sperm is available, but the sperms are not fragile in nature. They are not fragile. That means देखो यहाँ पे, this is the head part and this is the tail. This tail is providing the movement of sperm actually. okay, through with the aid of this tail the sperm is
traveling to the fallopian tubes and reach to the eggs or ovums. Okay, suppose that यहाँ पे fragile नहीं है, this is the non fragile. So in this case also go with this ART. Okay, okay, clear? Okay. Now the next one is that कि एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि here is this process inside the female body, the process of what, from ovum to sperm fertilization to the formation of embryo. That means the formation of embryo is taking the how much period of time? Yes, 3 to 4 week. Okay, that means कि यहाँ से लेके यहाँ तक वाली प्रोसेस जो है ना 3 से 4 वीक लेती है. Okay, in this period of time it very much possible कि the uterus is not able to process this 3 to 4 weeks duration stage. In that case we are go with this ART. ठीक है, so these are the reasons why the ART is needed. ठीक है, क्लियर है? ओके, चलो अब हम बात करेंगे कि वाई या यू कैन से कि एक्चुअली ARTs में होता क्या है. ठीक है, ARTs मूवीज देखे आपने विकी डोनर? ठीक है, उस विकी डोनर मूवीज में एक्चुअली देयर वाज अ हीरो नेम इज आयुष्मान खुराना, राइट? उसका रियल नेम क्या था वहाँ पे? विक्की. ओके, एंड विक्की इज एक्चुअली डोनेटिंग द स्पर्म. ओके, एंड स्पर्म फॉर व्हाट? स्पर्म फॉर दिस ART. दैट मीन्स द कपल्स जो कि सफ़र कर रहे थे कि उनको प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो उनको बेबी नहीं हो रहा था, और द रीज़न इज मेजर रीज़न इज दैट कि जो मेल कैंडिडेट है उनके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हुआ एक्चुअली. तो वो विकी डोनर वाला कुछ अपना ला करके ऐसी चीज़ें, हालांकि आयुष्मान खुराना ऐसी मूवीज़ बनाता है. मूवीज़ देखो, अच्छे अच्छे टॉपिक्स अच्छे रहते हैं, है ना. ओके, चलो इसमें होता क्या है कि एक्चुअली वी आर प्रोवाइडिंग द इन विट्रो कंडीशन फॉर द fertilization. Okay, that means the fertilization is occurs in vitro in the laboratory. Okay, we are taking the sample of sperm. Clear? We are taking the sample of sperm and here sample of egg or ovum. ठीक, क्लियर? ओके, ठीक है, इतना क्लियर है. हियर द फर्टिलाइजेशन इज अकर्स एंड कैसा फर्टिलाइजेशन है ये? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. These sperm and ovum are placed in a test tube. Okay, and they get fused and form the, क्या फॉर्म करेंगे? Okay, so now this zygote is transferred into the womb of woman. ठीक है, womb of woman, that means यूट्रस में. क्लियर? इसको यहां से उठा क्या कर देंगे हम? ट्रांसफर कर देंगे. बट पहले क्या था ना कि जो IVF होते थे उसमें हम यही करते थे कि जाइगोट को ही क्या कर दिया जाता था? ट्रांसफर कर दिया जाता था. बट देयर इज लेस चांसेस ऑफ द कंसीविंग द प्रेगनेंसी, ओके, कंपेरेटिवली व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग द कंप्लीट एम्ब्रियो. तो अभी ये प्रोसेस जो थी स्पर्म से ओवम बनने का, ये जो स्पर्म और ओवम से मिल करके जाइगोट बनने की प्रोसेस जो है, इट विल टेक द टाइम. कितना टाइम लेता है ये? इट्स टेकिंग द 72 आवर्स अप्रॉक्स.
कितना 72 आवर्स, दैट मीन्स 3 डेज, ठीक है, 24 3 जा 72। और ये प्रोसेस जब हो जाता है ना, ये प्रोसेस ना होने के पहले ही बहुत सारे ओरल कंट्रोसेप्टिव्स हैं, जैसे अनवांटेड 72। क्यों नाम दिया गया इसका अनवांटेड 72? दैट मीन्स व्हेन द प्रेगनेंसी इज गोइंग टू कंसीव अनवांटेड, अनविलिंगली, so then these oral contraceptives can be used to avoid that pregnancy, ठीक है। so this is 72 hours, okay। 72 hours की before the sperm is sperm, the ovum is ovum, they are not conjugated with each other, okay। that means there is process is, क्या कह सकते हो आप उसको, happening, actually चल रहा होता है, ठीक है। जब ये 72 आवर्स कंप्लीट हो जाता है तो नाउ द ओरल कंट्रासेप्टिव्स आर यूजलेस, दैट मीन्स द पिल्स एंड द लिक्विड्स आर नॉट नाउ द यूजलेस। व्हाई? बिकॉज इस कंडीशन के बाद तुरंत दूसरी जो कंडीशंस बनेगी वो क्या कंडीशन हो जाएगी अपनी, कंडीशन ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन। दैट मीन्स देयर इज एम्ब्रियो फॉर्मेशन चालू हो सकता है यहाँ पे, सॉरी जाइगोट बन जाएगा, सॉरी, ठीक है। एम्ब्रियो तो अभी कहाँ बनेगा, हाँ। आफ्टर 72 दिस इज कंप्लीटेड इनटू द जाइगोटिक फॉर्म, ओके। तो जाइगोट बनने के बाद फिर ओरल कंट्रासेप्टिव यूजफुल नहीं रह, ठीक, ओके। ये जो 72 आवर्स का है ना प्रोसेस, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, ओके। अगर जाइगोट बनता है फीमेल बॉडी में इस कंडीशन में, ठीक है, तो वो फर्दर कंसीव करती है। जाइगोट नहीं बनता है तो वी कैन इंसेमिनेट द आर्टिफिशियल, यू कैन से द इनविट्रो जाइगोट इनटू द यूट्रस ऑफ वुमन, ठीक है, क्लियर है। अगर इस जाइगोट के बाद भी अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करती लेडी, तो इन दैट केस वी आर यूजिंग द एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, embryo transfer technique. And in this embryo transfer techniques, actually the sample, you can say the sperm and ovum fertilization is done by in vitro process, okay। And after that we will cultured these zygote in the laboratory, कब तक, 3 to 4 week, until the embryo is formed. And when the embryo is formed, that embryo is transferred into the uterus of woman, okay, ठीक है। that means अभी तक ये जो जाइगोट के आगे वाली समस्या थी, जो कंसीव में प्रॉब्लम हो रही थी, तो अभी हम क्या करेंगे, कंप्लीट एम्ब्रियो को ही क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो दिस इज कंसिडर्ड एज द embryo transfer technique, okay। So when we will discuss about the ARTs या assisted reproductive techniques, then the first technique is considered as the zygote transfer techniques. The first was the zygote transfer techniques, in which we are transferring the zygote, the in vitro form zygote, into the uterus of woman, okay। Listen, this is happen in the टेस्ट ट्यूब, ओके। और यही फिर आगे वूम में जाकर के बेबी बनेगा, ठीक है, मदर बॉडी में, अपने मदर्स के। एंड ऐसे जाइगोट जो कि इनविट्रो में इनको बनाया जाता है, तो दिस जाइगोट आर कंसिडर्ड एज द IVF जाइगोट। और जो बेबी इससे बनेगा, दिस इज कंसिडर्ड एज द IVF बेबी। तो वी आर यूजिंग इन द IVF द टेस्ट ट्यूब, दैट्स वाई दिस इज कंसिडर्ड एज द टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड कुछ आ रहा हो दिमाग में तो पूछ सकते हो। तो ये क्या बनाएगा फिर, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, ओके। अभी प्रॉब्लम ये था ना कि हियर इज, इस स्टेज पे एक प्रॉब्लम थी जिसको रिजॉल्व किया गया बाय दिस ART। फिर इससे इसके बनने की 3 to 4 वीक्स वाली प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व किया गया।
नाउ द मेजर प्रॉब्लम इज कि इफ देयर इज, क्या पढ़ना है मैं, ए आर टी, हाँ, इफ देयर इज womb is not capable to conceive what, pregnancy, ठीक है. What should we do in this case? In this case there is actually, आप कह सकते हो, two ways is here to resolve this problem. The first is that the scientist is actually now developing the artificial womb. Artificial, this is nothing. The artificial womb is a lab vessels. Okay, lab wares. अब वो उसमें करेंगे क्या कि दे आर प्रोवाइडिंग द कंप्लीट एटमॉस्फेयर लाइक अ नेचुरल, ओके, टू द बेबी. ठीक, दैट मीन्स जो अभी टेस्ट ट्यूब में अपन जायगोट और एम्ब्रियो बना के ट्रांसफर कर रहे थे बॉडी में, तो नाउ देयर इज नो एनी ट्रांसफर स्टेज इज हियर. ओके, जस्ट forming that test tube zygote or embryo and transferring into the artificial womb, and the baby is now क्या developed inside this artificial womb. इस पे क्या होना, पूरा एकदम कैमरा में लगा रिकॉर्डिंग करेंगे 9 महीने 9 दिन का कि कहाँ कैसे क्या बन रहा है. फाइन, अभी ये अंडर डेवलप्ड अभी बना नहीं है. ओके, चलो, एक तो ये हो सकता है विच इज़ व्हाट, विच इज़ अंडर डेवलप, किया नहीं गया अभी तक, कोई एक्सपेरिमेंट अभी आया नहीं सुनने में कि द फर्स्ट आर्टिफिशियल वोम्ब इज प्रोड्यूस्ड अ बेबी, ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है. फाइन, ओके. द सेकेंड इज टू टैकल दिस प्रॉब्लम, दिस इज द सरोगेसी. दिस इज द सरोगेसी. सरोगेसी मीन्स दैट मीन्स द वोम्ब ऑन रेंट. जैसे आप किसी के घर में रहते हो ना, तो रेंट पे करते हो वहाँ रहने के लिए. ओके, दैट मीन्स नाउ द वोम्ब इज टेकिंग ऑन रेंट. ठीक है, दैट मीन्स इन केस ऑफ, इधर सपोज करो इधर मेल है इधर फीमेल है, इसमें स्पर्म भी है इसमें ओवम भी है, मतलब दे आर मतलब एकदम बिल्कुल दे आर वेरी हेल्दी. बट in case of female body, this condition is happen, womb is not capable. Okay, so in this case we are just fertilize it, zygote, then embryo. Okay, here is embryo is formed, and this और ये सब कहाँ होगा, ये इसी टेस्ट ट्यूब में होगा. that means IVF होगा, and now this is transferred into the womb of other lady. Okay, womb is transferred into the other lady, and this lady or mother is considered as the surrogate mother. Okay, and the baby is born by this surrogacy is considered as the surrogate baby. Surrogate baby. Okay, इसके लिए नॉर्मल ऐसा जैसे मैं समझा दिया वैसे ये हो नहीं जाता है. ठीक है, टेक्निकल इश्यूज एज वेल एज एथिकल मोरल इश्यूज एज वेल एज द गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, सेवरल इश्यूज आर रिलेटेड टू दिस सरोगेसी. ठीक है, एंड गवर्नमेंट इज एक्चुअली गवर्निंग टाइम टू टाइम दिस सरोगेसी. And why the need is the governance on this surrogacy? This is very most important actually. उसको करना ही पड़ेगा. Why? Because लोगों ने इसको क्या बना लिया था, एक ऑक्यूपेशन बना लिया. ओके, ऑक्यूपेशन बना लिया था. Many more ladies are there. आर मत बोला, अब उसको आप वॉश कर सकते हो क्योंकि अब बहुत ज़्यादा उस पर गाइडलाइंस आ गई हैं.
तो बहुत सारे ऐसे मतलब लेडीज़ थी कि उनको नीड होती थी किसकी, पैसे। ठीक, तो क्या किया कि सरोगेसी के लिए हाँ कर दिया। द कपल जो कि सरोगेस बेबी चाहते हैं, ओके, दे आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग सम मनी। ठीक है, मनी टू द मदर, एंड मनी फॉर व्हाट, फॉर द मदर एंड बेबी बोथ। उसके 9 मंथ और 9 डेज का जो पूरा ड्यूरेशन होता है ना, तब तक का पूरा जो एक्सपेंस होगा, वो खाने पीने से लेकर हर एक चीज़ का एक्सपेंस जो कौन उठाएगा, वही कपल्स उठाएंगे जिनको चाहिए सरोगेट बेबी। ठीक है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि पैसा मिल रहा है। ठीक, तो बहुत सारे लोगों ने इसको अपना ऑक्यूपेशन बनाने की कोशिश की। ठीक, और अकॉर्डिंग टू योर 20 एंड 21 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज़ अ फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। आपको पता ही है, तो डायरेक्टली कोई आप जा करके मना नहीं कर सकते हो कि क्यों भाई, क्यों आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो डायरेक्ट बोल देंगे कि एक्चुअली हम किसी के ऊपर क्या कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनको बेबीज़ नहीं पैदा होते, तो वी आर जस्ट सर्विंग फॉर देम। ओके, तो गवर्नमेंट भी नहीं बोल पाती थी कि चलो ठीक है यार, इट्स ओके। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनको डायरेक्ट मना करने से अच्छा इन्होंने पहले क्या किया, द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग द गाइडलाइन कि ठीक है आप करो, इट्स ओके, लेकिन देयर इज सम प्रोविजंस विच यू हैव मस्ट फॉलो दैट, करना ही पड़ेगा उसको फॉलो। तो उसके लिए उन्होंने जो कपल्स थे, द कपल्स हु आर एक्चुअली वांटेड फॉर द व्हाट, सरोगेट बेबी, उनके लिए भी गाइडलाइंस, दिस गाइडलाइंस फॉर द सरोगेट मदर्स। पहले होता क्या था कि बहुत सारे फॉरेनर्स, आपको पता है कि द वेस्टर्न कंट्रीज, nowadays the western countries, many of the western countries are suffering by this condition, एजुस्पर्मिया। ठीक है, बहुत सारे उनकी पॉपुलेशंस जो है वो एजुस्पर्मिया से क्या कर रही है, फेस कर रही है, सफ़र कर रही है। ओके, तो अब उनको क्या होता था कि उनको चाहिए होता था बेबी। अब वो सरोगेसी, उसके प्रॉब्लम उसकी फीमेल बॉडी में भी, तो वो सरोगेसी के लिए कहाँ आते थे, इंडिया आते थे, अदर कंट्रीज़ में भी जाते थे, इंडिया ज़रूर आते थे क्योंकि इंडिया के लोग वैसे भी सुंदर होते हैं देखने में, है ना, और अच्छे भी होते हैं, लोगों के ऊपर बहुत थोड़ा, मेरा प्यारा भारत देश महान, तो हम सब के ऊपर करेंगे एहसान, है ना, समथिंग लाइक दैट। तो रेडी हो जाते थे, फाइन। गवर्नमेंट ने उस पर भी क्या कर दिया, बैन कर दिया कि एक्चुअली नो फॉरनर्स आर अलाउड इन इंडिया फॉर द सरोगेसी। ठीक, अगर जो फॉरनर्स आना ही चाहते हैं या जिनको बहुत नीड है, तो फर्स्टली वो क्या करेंगे, अपने कंट्री में इंडियन एम्बेसी से चीज़ों को पहले मेडिकली अप्रूव्ड कराएंगे। जब इंडियन एम्बेसी उनको वहाँ पे अप्रूव कर देगी, आफ्टर दैट वो इंडिया आ सकते हैं। और आने के बाद जिस सरोगेट मदर को चूज़ करते हैं, जो सरोगेसी के लिए प्रिपेयर होती है, उसको ही बोल दिया गया है कि 2 बार से ज़्यादा आप सरोगेसी नहीं कर सकती हो किसी भी लेडी को, कि यू कैन बी सरोगेट मदर एज अ सरोगेट मदर फॉर अ ट्वाइस। ठीक है, उससे ज़्यादा बार नहीं। क्लियर? एज भी दे दिया गया कि मतलब 36 टू 45 समथिंग, उसके बाद आपको बनना भी नहीं है सरोगेट मदर, राइट। कुछ होते थे ऐसे लेडीज़ कि जो 45 प्लस होती थी, और आपको पता है कि आफ्टर द 45 प्लस ईयर्स ऑफ द लेडी अब मेनोपॉजल वाली कंडीशन आ जाती है। ओके, दैट मीन्स द नेचुरली ओवम्स आर नॉट अकरिंग। वहाँ पे ओवम का कोई यूज़ नहीं है सरोगेसी में, बट देयर इज सम ड्रास्टिकली चेंजेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, ओके, आफ्टर द 45 प्लस। क्लियर? तो उसके बाद चेंजेस आना चालू हो जाते हैं। तो बहुत कंडीशन में होता था कि वो पैसे ले लेती थी भाई खर्च के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, और पता चला कि नेचुरली अबॉर्ट हो जाता था बेबी। नेचुरली अबॉर्ट होना एक तरीके से, भाई जो बेबी अंदर बन रहा है उसकी क्या हो गया, एम्ब्रियो डेथ हो गई एक तरीके से। किलिंग ना कहो तब भी कहो, डेथ तो हुई ना। हमारे यहाँ उसको मोरली क्या होता है, बहुत ही गलत माना जाता है। आपको पता है ये चीज़ें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग दिस कि हाँ, कोई भी क्या करेगा, एम्ब्रियो टेस्टिंग नहीं कराएगा, कोई एम्ब्रियो किलिंग नहीं कराएगा। ठीक है, और बहुत बहुत सारी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दे दिया है, ठीक, स्पेशली फॉर द अबॉर्टिव प्रोसेसेस के लिए। ठीक, तो दीज आर द एक्चुअली ART विच वी हैव टू बी डिस्कस
उसमें ARTs में क्या क्या हमें डिस्कस करना है? सबसे पहले IVF डिस्कस करना है, टेस्ट ट्यूब बेबी डिस्कस करना है, ठीक है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, ओके। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन इज नथिंग द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो एंड द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, ठीक है, in the laboratory is transferred into the uterus of woman, okay, is considered as the intrauterine insemination technique. Clear? Okay. The baby which is formed by the in vitro fertilization is considered as the test tube baby, or you can say the IVF baby. ठीक है, बहुत सारे सेंटर मिलते हैं इंदिरा IVF सेंटर। तो IVF इज स्टैंड फॉर द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्लियर है, ओके। After this, when we will discuss about these techniques, so we have to discuss some another things regarding this ARTs, like the cloning, and cloning is nothing, this is the just copying, its mean is the copying someone is considered as the cloning, okay. That means this is also considered what? This is also considered the single parent child। क्या कंसीडर करते हैं इनको? सिंगल पेरेंट चाइल्ड। क्यों कंसीडर करते हैं, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द 3-parent बेबी। व्हाट इज 3-parent बेबी? एंड 3-parent बेबी इज ऑल्सो कंसिडर, दिस टेक्निक इज ऑल्सो कंसिडर द माइटोकॉन्ड्रियल थेरेपी। माइटोकॉन्ड्रियल थेरेपी क्यों करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल थेरेपी, ठीक है, नीड क्यों है माइटोकॉन्ड्रियल थेरेपी, इस पे भी हम बात करेंगे, फाइन। एंड उसके बाद फिर हम बात करेंगे अबाउट द डिज़ाइनर बेबी, ठीक है, क्लियर। और साथ में वी हैव टू ऑल्सो कंसीडर द ART बिल 2019। द 2019 द बिल इज रिफॉर्म्स, ओके, एंड आफ्टर द 2019 अभी तक कोई रिफॉर्म नहीं हुआ है उसमें, तो ART बिल 2019 वी हैव टू डिस्कस, एंड दिस ART बिल इज रिलेटेड टू द स्पेशली सरोगेसी, ठीक है, रिलेटेड टू द स्पेशली फॉर द सरोगेसी, ठीक। तो उस पर ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। IVF समझ में आया सबको, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी आया समझ में, जाइगोट ट्रांसफर टेक्निक आया समझ में, एम्ब्रियो ट्रांसफर समझ में आया, एजियोस्पर्मिया कंडीशन इज क्लियर, ओके, ठीक है। कल हम सबसे पहले आगे इसको लिखेंगे सबके बारे में, आज इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि आज बहुत लिख लिया। कितने पेजेस लिखे हो आज वैसे? बस यार, आपका चेहरा देख के मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि आप थक गए हो 3 पेज लिखते लिखते। 4-5, 4, 5.5, कोई बात नहीं, कुछ लोग बड़े लिखते हो तो अपने आप को 5.5 मत बताओ उसको, चलो कोई नहीं, मतलब सुनो सुनो सुनो, कल अभी हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, ये सब सारी चीज़ों को पहले हम डिस्कस करके उसको थोड़ा सा लिखते हुए चलेंगे, एंड आफ्टर दैट ये अभी समझना है हमें कि 3-parent बेबी क्या है। आज नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, एंड टाइम इज़ नियर अबाउट, ठीक है, हम पहुँचने वाले हैं 12 बजे। फिर नेक्स्ट डिज़ाइनर बेबी, इसमें भी थोड़ा बात करेंगे, इसके अपने कुछ मोरल एथिक्स हैं, कुछ कॉपी कैट के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो क्लोनिंग, अबाउट द क्लोनिंग, क्लोनिंग हो रही है इंडिया में कि नहीं हो रही है? क्लोनिंग हो रही है? एक्चुअली इंडिया में क्लोनिंग हो रही है, बट ओनली फॉर द थेरापेटिक पर्पजेज, ओनली फॉर थेरापेटिक पर्पज, ठीक है। दैट मीन्स क्लोनिंग ऑफ द ऑर्गन्स, ठीक है, क्लोनिंग ऑफ द ऑर्गन्स, यू कैन से द क्लोनिंग ऑफ सम एनिमल स्पीसीज, ठीक है। डॉली का नाम सुना? डॉली का, डॉली शिप, द फर्स्ट क्लोन ऑफ इंडिया, ओके। और वर्ल्ड की सबसे पहले ह्यूमन क्लोन कौन? नहीं पता? क्या? हाँ हाँ, फीमेल ही थी, बेबी गर्ल थी कोई, उसका नेम वाज द ईव,
एडम एंड ईव ना, उन लोगों का होता है अपना एडम और ईव। सबसे पहले एडम और ईव आए, वो मिल के पूरे सृष्टि का यूनिवर्स का नेम उसका दिया गया क्या, ईव, द फर्स्ट क्लोन बेबी। इंडिया में ह्यूमन क्लोन अलाउ नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं अलाउ है? बहुत सारे इश्यूज हैं उसके हैं। सबसे पहले यही इश्यूज है कि एक तो वैसे ही हम लोग हैं 135 करोड़, ठीक है। वी आर वेरी मच, क्या कह सकते हो, कैपेबल हैं टू क्रिएटिंग द, मतलब सेम लाइक समथिंग कुछ कह लो, अपने संतति अपनी ऑफ स्प्रिंग अपने बच्चे वगैरह नो। तो ऑलरेडी 135 में द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। और कितना चाइना के पास? कुछ नहीं है, बस 140, ठीक है। अभी जस्ट WHO ने बोला कि टिल 2035 इंडिया इज गोइंग टू क्रॉस द लिमिट ऑफ द चाइना। फिर इंडिया ने कहा नहीं नहीं, यू आर रॉन्ग, वी आर मोर कैपेबल देन यू थिंक। हाँ, फिर इंडिया ने अपना डेटा दिया, उन्होंने बोला जस्ट 2030 वेट एंड वॉच, ओके, वी आर जस्ट गोइंग टू अक्रॉस दिस 140 करोड़ ऑफ चाइना पॉपुलेशन, राइट ना। तो एक तो पहले ही नेचुरली इतना, ऊपर से क्लोन भी बना लिए, ठीक, समझ रहे हो ना। इसे तो वेरी डिस्प्यूट समझ रहे हो आप ना, मतलब जब फैमिली लेवल डिस्प्यूट इज स्टार्टेड एक्चुअली व्हेन द ह्यूमन क्लोन इज अलाउड इन इंडिया। तो फैमिली लेवल कैसे, 1 बीघा ज़मीन है, 4 उसके बच्चे हैं, अब डिवाइड करना है उसको, 5-5 बिस्वा मिलेगा सबको। सपोज करो, यार मैं देखो मेरे ऊपर सूट भी कर रहा है, मैं भी अपने 4 भाई हूँ, मैं भी अपने पापा के, बीघा ज़्यादा है लेकिन थोड़ा सा, ठीक है। अब सपोज करो कि मेरा क्लोन बना दिया, वो हमारे डैडी के पास पहुँच गया, हमें भी चाहिए हिस्सा। डैडी का नहीं नहीं, तो हमको मतलब तुमको तो हमने पैदा नहीं किया था, ओके, उनको पैदा किया था ना जिनसे मैं पैदा हुआ हूँ, तो मेन तो जड़ आप ही हुए, हिस्सा तो आप ही में से लूँगा मैं। तो मतलब देखा जाए तो थोड़ा सा उसका लीगल राइट्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, फाइन। तो क्लोनिंग मतलब बड़ी समस्या है आप कह सकते हो, लेकिन हाँ, थेराप्यूटिक क्लोनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई थेराप्यूटिक क्लोनिंग इज इंपॉर्टेंट? क्यों? क्योंकि हर एक बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं उनका अपना एक हेल्थ स्टेटस होता है। बहुत हेल्दी अगर किसी के लीवर और किडनीज हैं, तो उसकी अगर क्लोनिंग करके सेम अगर लीवर और किडनी बनाई जाए तो obvious सी बात है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में बड़ा हेल्प करेंगी। तो थेराप्यूटिक क्लोनिंग इज ओके, इंडिया में हो भी रहा है, मतलब रिसर्च किया जा रहा है उसके रिगार्डिंग, लेकिन ह्यूमन क्लोनिंग अलाउ नहीं है इंडिया में, फाइन। तो करेंगे बात क्लोनिंग पे कल।